Hello everyone. Today I am going to present a very interesting topic from physics, which is displacement is a positive, displacement is a negative, yeah, displacement can be zero. Many students get confused between distance and displacement. By the end of this lecture, you will easily understand why displacement can be positive, can be negative, or even zero. Okay. First, what is displacement? Before starting this lecture, I want to see all the slides which I discuss. First, the definition of displacement simple, and then what is positive displacement, what is negative displacement, and zero displacement. Then I took a image which help you to understand the difference between these three. Okay, and quick comparison. Okay, now start the lecture. What is displacement? So basically, displacement is the shortest straight line distance, distance between the initial position and the final position of an object along with direction. What I am trying to saying you that, let's suppose first I take a pen. A is a position and B is another positions. Okay. The shortest distance between the A and B is called displacement in a straight line. ओके, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है. ठीक है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही बताता है आपका डिस्प्लेसमेंट. गेटिंग माई पॉइंट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में हम लोग वेक्टर का साइन देते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. ठीक है, तो अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग फाइनल पोजीशन को माइनस करते हैं इनिशियल पोजीशन से. ठीक है, समझ रहे? तो आपको यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बी माइनस ए. ठीक है, ये जो आपका आएगा ये आपका क्या होगा? एस होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है? द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो आपका इसका साइन होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है. तो ये जो इसका जो साइन होता है ये आपका डिपेंड करता है किस पर? उस पे डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ गोइंग टू a next slide, which is positive displacement. Displacement is positive when an object move in the chosen positive direction. Okay, when body moves in a positive direction, chosen positive, that means when body is moves towards there. Okay, that then this time I will call it a positive displacement. For example, suppose a student start from point O and moves 10 meter to the right. That means what I am saying to you, this is a simple graph. It is a positive axis and it is a negative axis. When the object moves towards the positive axis, when we call it a positive displacement. Positive displacement. Okay, getting my point? So initial position 0 meter, final that let's suppose the distance between this 10 meter. Okay, and displacement is plus 10 meter. Getting my point? Since the motion is towards the positive direction, the displacement is positive. The positive signs tell us the object move in the chosen forward direction. That means what I am saying to you, the object is moving in a forward direction. That means object आगे की ओर जा रहा है. ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस में. गेटिंग माई पॉइंट? गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो displacement is negative when an object move opposite to the chosen positive direction. That means if the object, let's draw a graph, simple graph. This is a positive axis and this is a negative axis. Let's again I draw a graph. This is x axis, this is positive, this is negative. When object moves in this direction, that is called positive displacement. When the object is moved in a left direction, in this case we will say a negative displacement. Getting my point? If the same student start from point O and moves 10 meter to the left, before
previous video, the boys goes to a forward direction, and in negative displacement the boy goes to a left direction, that we will consider it negative displacement. Getting my point? हाँ, ये आपका इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल इफ द सेम चीज आई हैव रिटन हियर, इनिशियल पोजीशन 0 मीटर, फाइनल पोजीशन -10 मीटर, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -10। दैट्स वाई वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज ए नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ए नेगेटिव। ओके, द नेगेटिव साइन डज नॉट मीन लेस मूवमेंट, इट ओनली इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑपोजिट टू द पोजिशन डायरेक्शन। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, द नेगेटिव साइन डज नॉट मीन लेस मूवमेंट, दैट मीन्स नेगेटिव साइन ये नहीं बता रहा है कि मूवमेंट स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि उसका डायरेक्शन किधर है, दैट मीन्स ऑपोजिट है या उसके आगे की ओर है, टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसके मतलब बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, या एक्सिस हम लोग समझ सकते हैं। ये अगर एक्सिस है तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्सिस में अगर मूव कर रहा है तो वो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, और आपका नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते, जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो व्हेन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन आर द सेम। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया, ठीक है, फाइनल, पहले ए से बी गया, बी से, मतलब इनिशियल भी इसका सेम हो गया और फाइनल भी इसका सेम हो गया, दैट मीन्स आई इक्वल टू एफ, दैट मीन्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पॉइंट ऑब्जेक्ट वहाँ था, फाइनल में भी ऑब्जेक्ट वहीं पे है, ठीक है। तो अब क्या देखें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वॉक 20 मीटर फॉरवर्ड एंड देन 20 मीटर बैकवर्ड रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, बट द टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40 मीटर, क्योंकि वो 20 मीटर फॉरवर्ड गया, 20 मीटर बैकवर्ड है, तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, टोटल सम ऑफ द ट्रेवल पाथ, तो ये 40 हो जाएगा, बट इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन आर द सेम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो एंड द सो आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल, दिस सो द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या दिखा रहा है आपका कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये वाला आपका सबसे अच्छा एग्जांपल, मतलब इमेज दिया गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर की ओर, नेगेटिव ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, और आपका यहाँ पर आपका फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन क्या, एक चीज़ हम बताने भूल गए थे प्रीवियस लेक्चर में, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं पहले, in which case the distance and displacement are सेम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किस केस में बोलेंगे, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, कब, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा, दोनों आपका इक्वल होगा, जैसे कैसे, ए से बी तक कोई गया है, ठीक है, बी तक कोई गया, इन दोनों के बीच में मान लीजिए 20 मीटर का डिफरेंस है, तो ए से बी गया तो वो डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस भी कितना हो गया 20 मीटर, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर ही होगा, ठीक है, 20 मीटर ही होगा। इस केस में क्या होगा आपका क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, कौन कौन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस होता है ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस ही बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल किस केस में होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन पे होगा, ठीक है, और डिस्टेंस से बड़ा हमेशा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, किस केस में दोनों इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन पे, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका एंड हो गया, कंक्लूजन तो हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। When motion is toward the positive direction, displacement is positive. When the motion is opposite to the positive direction, displacement is negative. When the initial and final position are the same, displacement is zero. So the sign of displacement depend entirely on the direction. साइन किस पे डिपेंड करता है, उसका डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका एंड हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।